Okay. So good morning everyone and welcome to your EVS class. Today we are going to begin new unit, new lesson, that is Huttutu Huttutu. And I told you all to go through the lesson once. I hope everyone has done that. You must have read the Good lesson. Nahid, if morning, you don't ma'am. want to attend the class properly, please leave the class. Nahid, if you just want to laugh in the class, please leave the class. Already we have left with 5 chapters we have to finish now. So no need to waste time. I'll remove you if you unnecessarily you're going to laugh or smile in the class. Sit straight, keep your textbook in front of you, or you can look at the board or screen also. So the lesson that we are going to do today is Huttutu. Huttutu means it is the other name of the game Kabaddi. What is the other name of game Kabaddi is Huttutu, or in some of the language it is called as Chedu Guddu. So in exam they can ask you question, what is the other name of Kabaddi? The other name of Kabaddi is either Huttutu or Chedu Guddu. Okay? Like many boys, many children must have played this game in the school with your friends. You must have played this game. रहा है Please mute yourself and just listen. Don't waste time. Okay. You all must have played this game, boys. Mostly they play this in the PT period. So in this game, there are how many players are there in this game? Number of players in each team. It is a team game. There are two teams in this game. You must have seen this one. This matches प्रो कबड्डी के मैचेस यू मस्ट हैव सीन इन द टीवी में बहुत सारे बच्चों ने प्रो कबड्डी के मैचेस देखे होंगे अभी वापस से दिसंबर में अगेन दे आर गोइंग टू बिगिन दिस प्रो कबड्डी मैचेस अगेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टाइम यू कैन सी प्रो कबड्डी मैचेस जो आते हैं जो कोर्ट्स में खेलते हैं बट इन अर्ली टाइम्स व्हेन कबड्डी स्टार्टेड जब कबड्डी का गेम स्टार्ट हुआ था और हुतुतु व्हेन इट वाज प्लेड इन ओनली इंडिया हमारे इंडिया में जब गांव में खेला जाता था विलेजेस में तो उसके लिए कोर्ट नहीं होते नहीं दिख रहा है म्यूट योरसेल्फ खेलने के लिए कोर्ट्स नहीं होते थे कोर्ट्स का मतलब है जैसे अभी प्रो कबड्डी में तुम लोगों ने देखा होगा कोर्ट्स के अंदर स्टेडियम होता है क्लोज स्टेडियम उसके अंदर दे प्ले दिस कबड्डी गेम बट अर्लियर रेसलिंग और कबड्डी जो अब हम लोग ग्राउंड की जगह स्टेडियम में या कोर्ट्स में खेलते हैं ये ओपन ग्राउंड में नीचे सैंड डाल के या मिट्टी डाल के दे यूज टू प्ले देखा है कभी ओल्ड मूवीज में देखा होगा कभी टीवी में देखा होगा तो कबड्डी अर्लियर दे यूज्ड टू प्ले इन द ओपन ग्राउंड बट नाउ प्रो कबड्डी के मैचेस इफ यू सी ऑन यूट्यूब में प्रो कबड्डी इफ यू टाइप यू विल सी दैट पीपल प्ले प्रो कबड्डी के मैचेस होते हैं दे प्ले इन द कोर्ट्स अभी कोर्ट्स में खेलते हैं एंड इन आवर नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स में दे आर गोइंग टू ऐड दिस कबड्डी मैम इन इसमें सफेद वाली लाइन चुनी होती आने वाले जो ओलंपिक मैचेस हैं जो 2024 में आएंगे उसमें शायद ये कबड्डी गेम को भी दे विल इंक्लूड इन ओलंपिक गेम्स इंडिया टू पुश फॉर कबड्डी टू बी इंक्लूडेड एट 2024 ओलंपिक से स्पोर्ट्स मिनिस्टर so this is kabaddi match nowadays we play in this type of courts में खेलते हैं ये देखो ये रहा कबड्डी का कोर्ट इस तरह का कोर्ट आसपास अराउंड दैट ऑल द people sit and in the middle they play and ground is also not made of this thing ground में there is no sand or it is a just simple ground I'll show you in some of the pictures they have shown earlier जो कबड्डी खेली जाती थी in that they used to play in the like नीचे soil होती थी early times में when they used to play kabaddi okay and when they play kabaddi what all things you should know about it is इस टाइप का दे मेक अ ग्राउंड when you all play your hopscotch girls लोग hopscotch खेलते हैं तो hopscotch खेलते टाइम में you make some boundary कुछ एक बाउंड्री बनाते हो वैसे ही खेलते हो like when you play फुटबॉल के मैचेस होते हैं हॉकी के मैचेस होते हैं तभी भी स्टेडियम में दे मेक अ बाउंड्री एंड सम लाइन्स आर देयर कि डिफेंडर या किक जो करता है वो कहाँ से किक करने वाला है ना so they make some line similarly for kabaddi also there is a this type of ground they make children who all are interested in kabaddi उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस तरह का एक कबड्डी का they make these type of lines and this is the mid line here
है ना, and other children, other players of one team stand this side and one team they stand this side. Okay, so explain this one. See, these are मैम the lines. मैं Yes. ये गेम मेरे फ्रेंड्स के साथ प्ले करता हूँ. So when you play this game with your friends, do you make these kind of lines here? ऐसे mid line और यहाँ पे lines, boundaries, and here these 7 children, 7 team members will stand. जो team है एक side खड़े होगी. Then one of the player will come to another side. Others will defend them. वो अपने आप मैम को मुझे defend कबड्डी करेंगे. के बारे में सब कुछ पता है. Who is this? Anurag. Tell me then something about kabaddi. How it is played. You tell me now. कबड्डी कैसे खेलते हैं? टेल. कबड्डी खेलने में 2 टीम्स होती हैं. एक और बीच में एक लाइन होती है और दैट इज दैट मिड लाइन. इट इज अ मिड लाइन. एक प्लेयर को दूसरी टीम के पास जाना पड़ता है बाउंड्री के दूसरी टीम की बाउंड्री के अंदर और किसी भी प्लेयर को छू के भाग के अपनी लाइन के बाउंड्री के अंदर हाथ लगाना होता है. उसमें से जो डिफेंडर होता है वो कौन होता है? डिफेंडर. डिफेंडर किसको बोलते हैं? व्हाट इज डिफेंडिंग इन कबड्डी? इफ यू ऑल प्ले कबड्डी यू मस्ट बी नोइंग दिस. डिफेंडर. राघव सिंह राव टेल. डिफेंडर. हु इज डिफेंडर इन कबड्डी? डिफेंडर है ना वो जो आता है ना रेड करने उसको रोकता है. वो सबसे पहले वो ही पकड़ता है फिर बाकी आकर उसको पकड़ता है. So when you play kabaddi, you should be very strong. थोड़ा strong होना चाहिए. Physically you should be strong. ठीक है? मैं अपने फ्रेंड के साथ हमेशा मेरे दोस्तों के साथ कबड्डी में जीतता हूँ. जीतते हो लेकिन तुमको फिर पूरी डिटेल तो नहीं पता उसकी. मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि अगर गिर गया तो बहुत तेज कपड़े गंदे होंगे. नहीं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए जलज. You should play everything. All type of games you should play because it makes you strong. कबड्डी is a rough game. एक rough game है. It is not a simple game. Rough game है. So need lot of. हाँ भूमिका टेल. मैम 2-3 फिल्म में भी कबड्डी खेले जैसे कि पंगा और दंगल में. हाँ. It needs lot of pushing, lot of pulling, lot of struggle, lot of strength, and also your eye-hand coordination. मैंने किसी का लेग देखा तो मैंने उसको पकड़ना चाहिए. मीन्स I need those defensive skills in कबड्डी. Ankle hold, thigh hold, wrist hold. ये मतलब तुम्हारे पास वो defensive skills होना चाहिए. बहुत strength होना चाहिए अपने आप को रोक के रखने के लिए, है ना. और eye hand coordination होना चाहिए. Like many children, what they do, they look at the board, है ना, and then they, without looking in the notebook, they keep on writing. और children who play piano, जो piano बजाते हैं, without looking in the Casio, they play piano, है ना. तो हमारा ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से है. देन ओनली यू कैन डू दिस, है ना. आई हैंड का, आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैंने जल्दी से देखा और मैंने जल्दी से पकड़ा उसको. एंड देन आई टच्ड एंड आई केम बैक. राघव सिंह राव, जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय रेडिंग इन कबड्डी? राघव सिंह राव, रेड क्या होता है कबड्डी में? मैम रेड में हमको ना आगे वाली टीम में जाना पड़ता है. मतलब इतना सा भी टच हो जाए तो कितने भी टच कर सकते हैं. पैर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं. फिर अपन को अपनी बाउंड्री में आना पड़ता है. A player that is going in another team is a raider, है ना. जो दूसरी टीम में गया वो रेडर है और जो उधर होके अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो डिफेंडर है ना. ऐसे होगा ना. और मैम उसे कबड्डी कबड्डी भी बोलना पड़ता है. हाँ, विदाउट टेकिंग ब्रेथ, सांस रोक के बिना बीच में कबड्डी कबड्डी बोलना है. अगर तुमने बीच में सांस लिया then you will be considered as out. So what you all have to do today is as raider, defender and how kabaddi is played. वो थोड़ा सा. हाँ जलज, कौन बोल रहा है? विजय, what happened? मैम रेडर जाता है उसको 30 सेकंड्स का ही टाइम मिलता है. उससे ज्यादा अगर वो दूसरी टीम की एरिया में रहा तो वो आउट हो जाता है. अच्छा. तो रेडर जब दूसरी टीम में जाएगा, लाइक so Yash has told, as the raider crosses that mid line and goes to another team and within 30 seconds he has to come back. If he is unable to come back and touch that middle line
ऐसे एक मिडिल लाइन को वो वापस आके टच नहीं कर पाया इस साइड, तो ही विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द गेम, है ना, आउट मीन्स आउट, है ना. ओके, नाउ विल बिगिन दिस. एंड यू शुड नॉट बी स्कैर्ड कि मुझे लग जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके लिए नहीं खेलना है. यू शुड प्ले ईच एंड एवरी गेम. सब गेम खेलना है. मेंटली यू शुड बी मेंटली फिट, यू शुड बी फिजिकली फिट. मेंटली भी फिट रहना है, स्टडी करके पढ़ना है, रीडिंग करना है, एंड यू शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो. नाउ विल बिगिन इट. मेरे पापा ने भी ये गेम खेल रखा है. वेरी नाइस. सबके पापा को अच्छे से पता होगा, तो आज पापा के साथ बैठो और थोड़ा पापा से कबड्डी के बारे में पूछो. नाउ विल स्टार्ट चैप्टर हुतुतु. हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. म्यूट. Hututu, hututu, out, out, out. Hututu means out. All the girls on one side shouted loudly. Here some children, they are playing kabaddi. और उन्होंने out out चिल्लाया, मतलब उन्होंने एक साथ बोला हुतुतु. हुतुतु means कबड्डी कबड्डी जैसे बोलते हैं, ऐसे in some place they call it हुतुतु. तो hold from the leg, the leg ऐसे जब प्लेयर्स खेलते हैं तो वो जोर से शाउट करते रहते हैं ना. When you play this क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते टाइम भी कोई कोई शाउट करते रहते हैं ना, बॉयज पकड़ लो कैच, पकड़ लो कैच, पकड़ लो. वो हम लोग क्या करते हैं, उसको सामने वाले को थोड़ा सा चीयर करते हैं ताकि वो ऐसा करे. ऐसे ही व्हेन यू आर प्लेइंग कबड्डी, इधर चला गया. So the players keep on shouting aloud. Hey, make sure that Shyamala's hand does not touch the line. श्यामला को अंडरलाइन कर दो. श्यामला रेडर होगी जो दूसरी टीम में जाकर उसको टच करना होगा. So they said, make sure that Shyamala hand does not touch the line. Hold her hand. Out, out, out. Like this, these girls are shouting when they are playing kabaddi. See, they have held this girl. क्योंकि वो ये मिड लाइन को टच करके वापस जा रही थी, तो they have hold that girl. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. इनको देखकर पता चल रहा है कि they are not fighting. They are playing a game. What do you call this game? So this is the another name of this game, Chedu Guddu. इसको underline कर दो टेक्स्ट बुक में. The other name of this game is Chedu Guddu और हुतुतु और छू किट किट. और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में these are the name of kabaddi. So in exam they can ask you, tell me some other 4 names of kabaddi. So 4 other names of kabaddi are given here in your textbook. You can underline. Chedu Guddu, Hututu, Chukit-kit, Hadudu and Kabaddi, or something else. Maybe in some other place in our country, they call it something else. Okay. When 6 girls surrounded Shyamala, Shyamala को जब यहाँ पे पिक्चर में they did not have given only 3 girls, but they are saying when 6 girls surrounded Shyamala, Shyamala को जब 6 girls ने सराउंड कर दिया एंड दे कॉट हर, उसको पकड़ लिया. एवरीवन थॉट दैट, सबने सोचा शी वाज आउट. somebody caught her legs, किसी ने उसके लेग्स पकड़ लिए, किसी ने उसके हाथ आर्म्स को पकड़ लिया, है ना. while one girl caught her by the waist, किसी ने उसको वेस्ट से पकड़ लिया. but Shyamala was not the one to give up. she dragged herself and managed to touch the line in the center. जब तक वो प्लेयर कुछ भी स्ट्रगल करके, तुम उसको कितना भी पकड़ लो और रोक दो, what you all have to do to win, you have to come back and touch the center line. अगर उसने कितना भी, आदित्य you can leave the class. आदित्य leave the class. You have to touch the center line and then you have to come here. अगर ये लाइन में इतना भी टच हो जाता श्यामला का, तो she would have won. तो वो जीत जाती है ना. तो everybody surrounded, all the 7 girls they surrounded her. Who was trying to touch the midline? Aditya Kumar, tell me, who was trying to touch the midline? Aditya, you tell me or get out from my class. Aditya. Ma'am, Shyamala. What the other girls were doing? What other girls were doing? Other 6 players, what they were doing? Aryan Guja, tell me what other girls were doing? What those 6 other girls were doing? Divya Kumari, tell what those 6 girls were trying to do. Vishang, you tell. मैम
Krishank, you tell me. मैम वो कबड्डी खेल रही थी. What those other 6 girls were doing? Jalaj. Other 6 girls are Were. were मैम shouting and holding the Shamla's The Shamla नहीं Shamla. Shamla. हाँ. Other 6 girls were trying to hold Shamla Like that. from her legs, her waist, her hands, so that she could not touch the midline. But with struggle, उसने बहुत struggle किया and put all her strength. उसने अपनी पूरी strength डाली and then she tried to touch the midline. Children like Jalaj always try to make sentences on his own. In that way, you all have to try making sentences. जब तक बनाओगे नहीं, you will not learn how to say sentences. Okay. Now see, when 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. सबको लगा कि वो out हो गई, लेकिन वो out नहीं हुई. She dragged herself. Drag का मतलब होता है घसीट के ले गई खुद को, drag किया अपने आप को, and then she tried to hold the middle line. See, कितना struggle करना पड़ रहा है उसको to touch this middle line. Okay. When Shyamala touched the line, all the girls of opposite team were holding her. जब श्यामला ट्राई कर रही थी लाइन को टच करने के लिए, तो जो ऑपोजिट टीम की गर्ल्स थी उन्होंने उसको टाइटली होल्ड किया था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. अब अगर मैंने मिडल लाइन टच कर दी, इफ द प्लेयर टच द मिडल लाइन, मैंने ये मिडल लाइन टच की, उस टाइम में जिस प्लेयर ने मुझे पकड़ के रखा है वो सब आउट हो जाएंगे, है ना. राघव सिंह राव को पता होगा अच्छे से ये वाला, अगर उसने खेला ये गेम. तो अगर मैंने ये टच किया और उस टाइम मुझे किसी ने नहीं पकड़ रखा तो नोबडी इज आउट. बट इफ आई क्रॉस दिस लाइन, टच दिस लाइन, यस जलज से, मुझे पता है कि ये आउट कैसे होंगे, क्योंकि ये रूल होता है कि टच किया तभी दूसरा आउट हो जाएगा और सबसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबने उसे टच कर लिया. अगर उसने अब ये सबने टच नहीं कर लिया, सब उसको ट्राई कर रहे थे रोकने को, तो उन्हें नहीं पता था कि ये लाइन टच कर देगी, पर उसने बहुत स्ट्रेंथ लगा के टच कर दिया. जैसे ही लाइन टच हुआ तो चिल्ड्रन हु वर होल्डिंग हर, जो प्लेयर्स उसको पकड़ के रखे थे, दे ऑल गॉट. खुशी निश्चल, क्या हुआ? वो सारे के सारे प्लेयर गॉट मैम आउट. they all were out because they were touching the player who touched the midline. Okay. When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. But Rosie argued that, Rosie ने argument किया कि Shyamala had taken a breath in between. Shyamala जब कबड्डी कबड्डी बोल रही थी तो उसने बीच में सांस ली थी, so the team was not out. तो ये भी एक रूल होता है, जैसे अभी किसने बताया था कि कबड्डी कबड्डी बोलने के बीच में सांस नहीं लेनी चाहिए. सांस लिया अगर तो तुम्हें द प्लेयर विल बी आउट. तो वन ऑफ द प्लेयर्स, रोजी ने बोला कि बीच में श्यामला ने सांस ली थी इसलिए हम नॉट आउट हैं. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू. श्यामला ने बोला लेकिन मैंने तो सांस नहीं ली. शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. अब इस श्यामला को उन्होंने क्या बोला कि तुमने सांस ली थी इसलिए तुम ही आउट हो. तो श्यामला ने बोला अगर मैंने सांस ली होती और तुमको पता चलता मैंने सांस ली तो व्हाई यू वर होल्डिंग मी, तुमने मुझे क्यों पकड़ा, मैं तो तभी आउट हो गई थी ना. तो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट श्यामला वाज करेक्ट. तो श्यामला ने सांस नहीं ली थी तो शी वाज नॉट आउट, बट दे वर डिफेंडिंग देम. वो लोग ये सब बोल के अपने आप को डिफेंड कर रहे थे. ओके, नाउ कम डाउन. यूजिंग दिस गेम, कहाँ गया, कीप होल्डिंग. देयर इज अ बिग आर्ग्यूमेंट. फाइनली श्यामला वन. फाइनली सब डिसीजन होने के बाद में पता चला कि श्यामला वाज करेक्ट एंड शी वन द मैच, है ना. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? In a team there are, यहाँ पे लिख दो, in a team there are 7 players. In a team, each team. In one team there are, in a team, or team. There are 7 players. Second is, how many players got out when Shyamala touched the line? जब श्यामला ने लाइन टच की तो कितने प्लेयर आउट हुए? कौन बताएगा ये? खुशी निश्चल है.
Kushi, tell. Ma'am, 6 players. Players. Why 6 players are out? Because they were touching, were Ma'am, holding. they are holding. They were holding Shyamala, so they got. Those 6 players got out. मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि They had asked us only how many players, but I am writing details because so that you will learn. तुम्हें पता चलेगा कि क्यों 6 players out हुए. Okay, just note it down. 6 players were holding Shyamala. 6 players ने hold कर रखा था Shyamala को, इसलिए all of them they got out. Just copy down. Bhumika done? Ma'am, board is not. Okay. Next question is: Do you have ways to resolve this? Do you have ways to resolve dispute in games? क्या गेम में कोई डिस्प्यूट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, या तुम्हारा यू आर नॉट अग्रीइंग टू समथिंग, इज देयर एनी वे टू सॉल्व दोज डिस्प्यूट्स? जैसे घर में ब्रदर सिस्टर खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, तभी तो मम्मी आ जाती है ठीक करने के लिए. बड़े गेम्स में कौन होता है? राघव. मैम कोई कोई कभी ना ऐसे करता है कि ना लाइन टच करता है तो दूसरी टीम कहती है Question है, कि नहीं line touch listen नहीं to है. the question properly, Raghav. If there is any dispute in the game, अगर गेम में डिस्प्यूट हुआ, जैसे कि रोजी ने बोला कि श्यामला ने सांस ली थी, श्यामला ने बोला मैंने ब्रीथ नहीं किया था, तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई होता है क्या? यस मैम, एम्पायर. एम्पायर की जगह और क्या बोलते हैं उसको? जज है. यस. Ma'am, referee. Ma'am, referee. So there is a Ma'am, captain भी बोलते हैं. कैप्टन. तो उस गेम में नहीं होता है, रेफरीज होते हैं. Ma'am, leader. नहीं बोलते. Referee is different. रेफरी. Ma'am, third referee. Ma'am, referee. थर्ड एम्पायर आता है इसमें. क्रिकेट में सेकंड फर्स्ट एम्पायर देता है, फिर भी डाउट होता है तो थर्ड एम्पायर आता है. ऐसे ही जो गेम्स में रेफरीज होते हैं, दे डिसाइड. तुम्हारे घर में रेफरी कौन होता है? मम्मी होती है. ब्रदर सिस्टर की लड़ाई हो जाती है तो मम्मी आती है सॉल्व करने. तो एट होम इफ यू आर प्लेइंग देन योर मदर कम्स, बट इफ इट इज अ बिग गेम इन स्टेडियम्स वी हैव रेफरीज, और इन क्रिकेट मैचेस वी हैव एम्पायर्स. ओके, शैल वी मूव ऑन? आदित्य कुमार, आर यू राइटिंग इन द नोटबुक? मैम मुझे पता है कि रेफरीज क्या क्या करते हैं. हाँ, टेल. गेम में तो 2 रेफरीज होते हैं, पर एक रेफरी ने एक टीम का साथ दे दिया और दूसरे रेफरी ने दूसरी टीम का साथ दे दिया, इसलिए तीसरा एम्पायर कैमरे से देखता है कि कौन ठीक है. हाँ, थर्ड एम्पायर तब होता है जब हमें रेफरी जो एम्पायर होता है उसके Ma'am, वो क्रिकेट में होता है. डाउट आता है ना, उसके भी डिसीजन में डाउट आएगा तब. नाउ विल मूव ऑन. ओके, द गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. ये गेम ऑफ कबड्डी है. पुशिंग एंड पुलिंग एंड स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ड्रैगिंग, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. इट इज अ रफ गेम. ये पूरा अंडरलाइन करो. जैसे जलज does not want to play this game because it has pushing, pulling, screaming, shouting, dragging, falling on the ground. It is a rough game. Now if I ask you, tell me 2 sentences about kabaddi, so I'll say kabaddi is a rough game. Rough game है. It has pulling, pushing, dragging, shouting, screaming. उसमें ये सब कुछ है ना. तो हमें किसी किसी को ये सब पसंद नहीं होता, तो हम लोग चाहते हैं ये वाला गेम ना खेलें, है ना. तो टेल मी 2 sentences about कबड्डी. जलज यू टेल 2 sentences about कबड्डी गेम. अंडरलाइन करो उस वाले पार्ट को. कबड्डी is Is a rough game. One thing. Second, Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging. but what it is? It has. उसके अंदर It होता है. has pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. Yes. What do you mean by screaming? What do you mean? मैम जमीन मैम घिसना. मैम जमीन पे घिसना. Ma'am, देखना. Screaming. Scream रे बेटा. Scream. Screaming.
स्क्रीम करना मतलब चीखना. इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड एंड सडनली अ डॉग स्टार्ट चेजिंग यू, सडनली से एक डॉग तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम जैसे चिल्लाओगे ना, वो वाला चिल्लाना है स्क्रीमिंग. समझ गए? दैट इज. मेरे को 2 सेंटेंस और पता है. बोलो. वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ा मैंने उसमें से पूछा. ओके. तो इट इज अ रफ गेम. कबड्डी इज अ रफ गेम. इट इंक्लूड्स, उसके अंदर होता है, इट इंक्लूड और इट हैज these all things in it. We need lot of physical strength. हमको बहुत सारी ताकत चाहिए कबड्डी खेलने के लिए. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. इंग्लिश में भी एक लेसन है स्ट्रेंथ वाला, जब व्हेन यू रीड दैट काउ वाला एक लेसन है, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए टू पुल द रोप ऑफ दैट काउ. जब पढ़ोगे तुम लोग. ओके. मैम मेरी दीदी ने बताया था. ओके. नाउ कम यार. इट इज लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज. कबड्डी खेलने से बहुत मजा भी आता है और हमारी बॉडी की बहुत एक्सरसाइज भी होती है. होल्डिंग योर ब्रेथ व्हाइल रनिंग. भागते भागते अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, सांस रोकनी है. एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी. और भागना भी है, उस टाइम हमारी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है और बिना रुके कबड्डी कबड्डी बोलना है. एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम. और सिर्फ उतना ही नहीं करना है, भागते भागते दूसरी टीम के प्लेयर को पकड़ना भी है. आई और ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए. हमें दिमाग भी लगाना है कि मुझे कैसे बच के वापस आना है. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. और अपनी breath भी hold करना है. Means you should have lot of focus भी होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता ये गेम खेलने टाइम you do not need a brain. बिल्कुल दिमाग भी चाहिए, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि तुमको देखते टाइम दिमाग लगाना है कि मैं हाउ वुड आई गो टच एंड आई कम बैक विदाउट गेटिंग स्टक देयर. वहां फंस जाने बिना वापस भी आना है. सो ब्रेन, आई, हैंड कोऑर्डिनेशन प्लस बॉडी की स्ट्रेंथ सब कुछ लगा के यू हैव टू गो एंड देन यू हैव टू कम बैक. तो हमारा फोकस भी इससे इंक्रीज होता है. एंड वी लर्न टू एडजस्ट. हमारा एडजस्टमेंट भी बढ़ता है ना प्लेयर्स के साथ. हम व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्न व्हेन वी प्ले गेम्स. हम जब एक गेम खेलते हैं टीम वर्क में, टीम में गेम खेलते हैं, तो हम क्या सीखते हैं एक दूसरे से? मैम ईमानदारी. सबसे इम्पोर्टेंट वी लर्न कोऑपरेशन. कोऑपरेट करना. टीम स्पिरिट. ऐसा नहीं. हाँ, कोऑपरेट करना एक दूसरे से. दूसरा इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे हमारे, वन ऑफ द प्लेयर ही बिट ऑन हिज हैंड. उसने उसके हाथ में काट लिया था, देखा था किसी ने? न्यूज़पेपर में भी क्लिपिंग आई थी. विच इज नॉट अलाउड. मैम मैंने लाइव मैच देखा था. स्वयश ने देखा होगा क्योंकि स्वयश पेपर पढ़ता है आई थिंक, है ना? नंबर आई कैन नॉट बाइट अ प्लेयर बिकॉज ही इज होल्डिंग मी. प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ. म्यूट. जब तुम लोग यहाँ पे डॉच बॉल खेलते हो ग्राउंड में, मेनी टाइम्स यू वेंट विद मी, मेरे साथ गए थे खेलने के लिए. सम चिल्ड्रन दे पुट अ लेग इन फ्रंट ऑफ अदर चिल्ड्रन ताकि वो गिर जाए, विच इज रॉन्ग, विच इज डज नॉट कम्स अंडर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में खेलना मतलब मुझे जितने रूल्स बताए गए मुझे फॉलो करना है. मुझे किसी को काटना या पुश करना नहीं है. जैसे तुम्हारे स्पोर्ट्स होते हैं तो यू हैव ट्रैक्स टू रन. रनिंग के लिए ट्रैक होते हैं, पर कुछ बच्चे वो ट्रैक को तोड़ के दूसरे बच्चे को पुश करते हैं, विच डज नॉट कम अंडर डिसिप्लिन. व्हेन यू प्ले एट अ बिग लेवल. हाँ जलद बोल. मैं एक बार मैंने खेला था तो दूसरे ने मेरे नाखून मारे थे. हाँ, लेकिन जब तुम कंटिन्यूस खेलते रहोगे एंड व्हेन यू कम टू अ बिग लेवल, बड़े लेवल पे जाकर खेलोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आई हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन. मुझे गेम खेलने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना है. सेकेंडली मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ हु हैज अनम्यूटेड. स्वयश एक मिनट पहले थोड़ा ही कंप्लीट कर दूं, देन आई विल आस्क यू. कोऑपरेट करना है फ्रेंड्स के, प्लेयर्स के साथ में. मुझे डिसिप्लिन में रहना है. मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा when I am playing a game. Adjustment and playing in a team. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने खेला, अगर मैंने सिक्सर लगाया तो मेरा ही सिक्सर होगा, मेरी टीम का सिक्सर नहीं होगा. लाइक जैसे अभी हमने हमारी ओलंपिक में हॉकी टीम को मेडल मिला था,
तो हमारी पूरी टीम को मिला ना, हमारे इंडिया के लिए है ना वो, दैट इज टीम वर्क, वो टीम वर्क है। अगर एक प्लेयर सोचे मैं ज्यादा अच्छा खेलूंगा, किसी को कैसा भी खेलने दो, मेरा नाम होना चाहिए, तो वी विल नॉट लर्न टीम स्पिरिट। तो हमारे अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए। जैसे व्हेन आई आस्क यू ऑल क्वेश्चन, क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछती है, क्यों टीचर बोलती है किसी और का आंसर मत बोलो? इसलिए बोलती है क्योंकि हमारी पूरी क्लास ने सीखना चाहिए, सिर्फ एक बच्चे ने सीखना नहीं चाहिए। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अंडरस्टूड? इसलिए हमें हमारे फ्रेंड्स का आंसर नहीं बोलना है। इफ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड, जब उसका आंसर, जब उसने बोल दिया टीचर आई डू नॉट नो, दैट टाइम यू कैन टेल योर आंसर सो दैट योर फ्रेंड विल लर्न फ्रॉम यू। तो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे लर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट सीखते हैं। तो गेम्स खेलने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। यू शुड खेलना ही चाहिए एवरीडे फिजिकल गेम, साइकिलिंग करो आजकल, और कुछ नहीं कर सकते तो, बिकॉज हम फिजिकली फिट होंगे, हम लोगों के साथ रहना सीखेंगे, हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, हम कोऑपरेट करना सीखेंगे, हमारे अंदर टीम स्पिरिट आएगा। ओके, सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम गेम्स। स्वयश वाज सेइंग समथिंग से, स्वयश बोलो क्या बोल रहे थे? उन्होंने रवि दहिया प्लेयर को पकड़ा, काटा था। हाँ, वो विच वाज रॉन्ग, जो रॉन्ग। ओके ना, सी कम डाउन, जल्दी जल्दी फिनिश करें, हमें ये लेसन फिनिश करना है। किधर गया? You can do this as long as you hold your breath. You need to use both your body and mind in this game. ये अंडरलाइन कर दो। ये गेम बिना माइंड यूज किए तुम नहीं खेल सकते, सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होगा। You need to use both your body and mind in this game. You have to use your strength, और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, इसको भी अंडरलाइन करो। To pull, खींचने के लिए, और किसी प्लेयर को रोकने के लिए you need lot of strength. At the same time, और उसी टाइम पे you have to think about how to enter the other side, कि मुझे एंटर कैसे करना है, और मुझे वापस से उसे टच करके how I should come back without getting stuck there. If you get caught, अगर तुम पकड़े गए, then how do you reach the line in the center? तो इतना all these things you all have to, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, इसको हाईलाइट कर दो स्टार लगा के। So all these things you all have to keep in mind when you are playing kabaddi. So it is not a easy game. Easy game नहीं है. Okay. Now come down. Try to hold your breath and keep saying kabaddi, kabaddi. How many times can you say? अभी मत बोलना. After your class, अपनी सांस रोककर कबड्डी 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 बोलो, और मुझे कल बताना कि कितने मिनट तक तुम कबड्डी कबड्डी सांस रोककर बोल पाए विदाउट रनिंग, और यू कैन जंप इन एट द सेम प्लेस एंड डू। अभी हमें राघव करके बताएगा। राघव स्टैंड, जल्दी से करके बताओ। कबड्डी 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 कबड्डी, खड़े होके जंप भी करना है, जंप जंप जंप। कबड्डी 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 कबड्डी। फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन डू, टाइम देखना पहले, देन यू स्टार्ट। कितनी देर तक बिना सांस रोक के यू कुड डू दैट यू ऑल हैव टू फाइंड आउट, एंड यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। How many times can you say it while you are playing kabaddi? लेकिन मैं जब सच में कबड्डी के ग्राउंड में खेल रही हूँ, जैसे अभी राघव ने एक बार बैठकर बोला, देन राघव ने खड़े होकर रनिंग करके बोला, देन व्हेन ही इज एक्चुअली प्लेइंग कबड्डी इन द ग्राउंड, जब वो सच्ची में खेल रहा होगा, तब दोनों में डिफरेंस होगा क्या? यस होगा। इसलिए होगा क्योंकि व्हेन आई एम प्लेइंग कबड्डी इन द ग्राउंड, तो मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ और लग रही है, बिकॉज आई हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। मेरी स्ट्रेंथ भी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं थक भी रही हूँ, तो इट विल बी डिफरेंट। तो जरा फाइंड आउट करके देखना, एक बार बैठ के बोलना और एक बार थोड़ा रनिंग करते हुए बोलना। ओके, आई कैन नॉट आस्क यू ऑल टू गो आउट एंड प्ले। अभी आगे फटाफट पढ़े। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग, आर्म एंड आईज। जब नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें कबड्डी खेलने मिलेगा, तो अपनी लेग्स पर, आर्म्स पर और आईज पर यू हैव टू पे अटेंशन। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन, इसको अंडरलाइन करो, गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन योर आईज, लेग्स एंड आर्म्स। क्यों अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए ये तीनों चीजों में? खुशी निश्चल टेल व्हाई आई नीड अ गुड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, जैसे तुम लोग अभी मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मैं तुमको बोलती हूँ कि म्यूट योरसेल्फ, तो म्यूट कर लेते हो,
है ना? मैम तो यू आर लेग कोऑर्डिनेटिंग। स्ट्रांग होनी चाहिए और फोकस लाइन पे होना चाहिए। हाँ, ऐसा इसलिए होना चाहिए, मुझे लाइन पे फोकस करने के लिए आईज चाहिए, ठीक है। फिर मुझे लेग्स को कोऑर्डिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार देख लूं रुक कर, फिर मैं आराम से रनिंग करते हुए जाऊं, फिर मैं वहां खड़े होकर सोचूं अब मुझे क्या करना है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। मुझे पता रहना चाहिए, मुझे फटाफट करना है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, दोनों चीजें में कोऑर्डिनेशन। लाइक व्हेन आई टॉक टू यू, व्हेन आई हैव टू टर्न, व्हेन आई हैव टू राइट, बहुत बार ऐसा होता है मुझे, आई जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम राइटिंग समथिंग, तो ब्रेन आई हैंड पूरा कोऑर्डिनेशन है। यस जलज, मैम जलज मुझे जल्दी। डिफेंडर की चाल पता है। कभी कभी ना जब हमारा जो टीम वाला है वो सीधा चला जाता है तुमको आउट करने के लिए, वो एक साइड से घूम के उसके सामने आ जाता है ताकि वो बाहर ना जा पाए। आज तुम लोग क्या करना, यूट्यूब में कबड्डी का कोई सा गेम देखना, पुराना वाला देखना, ये प्रो कबड्डी मत देखना। प्रो वाला भी देखो, लेकिन जो पहले चलते थे वो देखोगे तो तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा कि कबड्डी की एक्चुअल खेलते कैसे हैं। मे बी तुम में से कोई इंटरेस्टेड हो कबड्डी में, जो आगे जाके कभी बहुत अच्छा गेम खेले। ओके, वैसा ही होता है कबड्डी भी। वेरी गुड। मैं आज अभी यहाँ पे कबड्डी खेलूंगा। ओके, कम डाउन जल्दी से। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो। ये नहीं बनाना है, हम पिक्चर टेक्स्ट बुक में हमने देखा कि श्यामला ने कितना यहाँ पे ड्रैग करना पड़ा उसको अपने आप को टू होल्ड टू टच दिस लाइन, ओके, एंड हाउ द प्लेयर्स गॉट आउट। So no need to draw this. Then what does it mean to be out in games? What does one girl get out in kabaddi? Out का मतलब होता है that player will not be playing in that game after that. वो player उस game में फिर नहीं खेलेगा. In some of the games, it is very important to touch the player. किसी किसी game में player को touch करना important होता है, जैसे कि खो खो, गेम ऑफ खो खो, यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। खो खो में अगर कोई हमें टच कर देता है तो हम लोग आउट हो जाते हैं। ऐसे और कौन से गेम है जिसमें कोई हमें टच कर देता है तो हम आउट हो जाते हैं? मैम पकड़म पकड़ाई। राघव सिंह राव बताओ। हाँ, पकड़म पकड़ाई। मैम लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर। कबड्डी, कबड्डी, मैम कैंडल लाइट। मैम आइस वाटर। कैंडल लाइट। मैम आइस वाटर। मैम आइस वाटर। आइस वाटर। मैम आइस वाटर। ओके, whatever you know right now, आइस वाटर। mute yourself. Okay, please cooperate and mute yourself. Okay, इसको फिनिश कर देते हैं इतने पार्ट को, है ना। इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। व्हाट आर द सम अदर गेम इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? और कौन से गेम, कोई बोलेगा नहीं, मैं ही बता दूंगी आंसर, है ना। कौन कौन से गेम में सेंट्रल लाइन होती है? वी हैव सेंट्रल लाइन। सेंटर लाइन के किसमें होती है? सेंटर लाइन इज प्रेजेंट इन हॉकी, इन फुटबॉल, बैडमिंटन में भी होती है एक सेंटर लाइन, और टेनिस में भी होती है एक सेंटर लाइन। हाँ राघव बोलो। मैम क्रिकेट में भी होती है, जो बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है। और वो सेंटर लाइन नहीं होती, मैं मिड लाइन की बात कर रही हूँ, है ना। तो क्रिकेट मत लिखना। क्रिकेट में नहीं होती लेकिन ओके, क्रिकेट नहीं लिखना है। व्हाट आर द गेम्स इन व्हिच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू, ओके स्टॉप नाउ। व्हाट आर द गेम्स इन व्हिच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर? कौन से गेम में तुमको कलर टच करना पड़ता है? दैट आल्सो यू कैन राइट ऑन योर ओन। नाउ कल हम लोग ये वाला पढ़ के विल फिनिश दिस लेसन, ओके। नाउ आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड का एग्जाम है कोई, सो आई हैव टू लीव द क्लास, ओके। That's all for today. Today I have given you a worksheet on Google Classroom. Changing family. Wait. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.